آپ کو بتائیں کہ عام انتخابات میں صرف 6 روز باقی ہیں۔ الیکشن کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ الیکشن کمیشن نے اسکولز میں سامان کی ترسیل کا عمل شروع کر دیا ہے۔ سامان میں کمپیوٹر، کیمرے، بیٹری اور دیگر الیکٹرانک سامان شامل ہے۔ اس حوالے سے مزید کیا تفصیلات ہیں جانیں گے نمرہ ریاست ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی نمرہ۔ جی بالکل، عام انتخابات میں چند دن باقی ہیں، ایسے میں ہم دیکھتے ہیں سیاسی کیمرہ کیمرے بھی روز پر ہے اور الیکشن کمیشن کی جانب سے بھی جو ہے وہ تمام تیاری مکمل کی گئی ہے اور الیکشن کمیشن کی جانب سے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسکولوں میں سامان کی ترسیل کا عمل جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے۔ ڈی روڈ میں بھی تقریباً 40 کے قریب سرکاری اور نجی اسکولوں میں سامان کی ترسیل کر دی گئی ہے اور ترسیل کیے جانے والے سامان میں کمپیوٹر، کیمرے، بیٹری اور دیگر الیکٹرانک سامان ہے، جس کی جو سامان کی ترسیل کی گئی ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے، اس کے جو انسٹالیشن کا عمل ہے وہ آج رات تک ہی مکمل کر دیا جائے گا۔ اسی طرح مختلف علاقوں میں بھی تمام سرکاری اور نجی اسکولوں میں الیکشن کمیشن کی جانب سے جو ہے وہ سامان بھجوا دیا گیا ہے۔ جی نمرہ، اپڈیٹ کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ بزنس گروپ نے سیاسی جماعتوں سے معاشی پالیسی کو درست کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ یونائیٹڈ بزنس گروپ کے صدر زبیر طفیل نے کہا کہ مہنگی بجلی اور گیس سے غریب عوام شدید پریشان ہے۔ انڈسٹری کو چلانے، روزگار اور تنخواہیں بڑھانے کا پلان دیا جائے۔ افسوس ہے کہ سیاسی جماعتیں عوام کو بھیڑ بکری سمجھتی ہیں۔ مزید جانیں گے اشرف خان سے۔ الیکشن کی تیاری عروج پہ اور یہاں بزنس مین بھی یہ کنسرنس کریں کہ تمام سیاسی جماعتیں جو ایسا مینیفیسٹو دیں کہ مشکل میں جو گھری معیشت ہے وہ نکل سکے۔ یونائیٹڈ بزنس گروپ کے جو صدر ہیں زبیر طفیل ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں، الیکشن ہونے جا رہے ہیں، کیا مطالبہ کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا سب سے پہلا مطالبہ تمام سیاسی جماعتوں سے ہے کہ وہ اپنا آئندہ 10 سال کا معاشی پلان دیں کہ اگر ان کی حکومت میں آتے ہیں تو ان کے پاس کیا پلان ہے۔ ایک شارٹ ٹرم پلان بتائیں کہ 5 سال میں کیا کریں گے اور ایک لانگ ٹرم پلان بتائیں کہ 10 سال میں کیا ہوگا۔ اس وقت ملک کی معیشت جو ہے وہ شدید بحران کا شکار ہے۔ بے روزگاری جو ہے برابر بڑھتی چلی جا رہی ہے، مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے، بجلی کے بل جو ہیں وہ لوگوں کو اتنا تنگ کر رہے ہیں کہ تنخواہ کا آدھا حصہ جو ہے بجلی کے بل پہ جاتا ہے۔ جو بھی حکومت آتی ہے وہ ان کو چاہیے کہ کوئی پلان بتائیں کہ ان کے آنے سے غربت میں کیا کمی آئے گی، یا غریب آدمی جو 35,000 میں زندہ نہیں رہ سکتا وہ کیسے رہے گا، اور یہ بھی بتائیں کہ آئندہ 3 سال میں ان کی تنخواہیں کتنی بڑھائی جائیں گی۔ اتنی تنخواہیں بڑھائیں کہ کم از کم وہ اپنا جو روزگار ہے اپنے گھر کا بجٹ جو ہے کسی طرح چلا سکیں۔ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ عوام کو بھیڑ بکری سمجھتے ہیں۔ الیکشن سے پہلے تک خاموش بیٹھے رہے اور دیکھتے رہے، اور جب الیکشن میں 15 دن رہ گئے تو دیا۔ ان کے پاس کوئی سنجیدہ ماحول نہیں ہے، ورنہ یہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ عوام اتنے مشکلات کا شکار ہیں۔ یہ تو ان کو آج سے 1-2 مہینے پہلے بتانا چاہیے تھا کہ جی ہمارا یہ معاشی پلان ہے، اور اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے، لیکن کیا نہیں۔ ابھی بھی جو الیکشن ہے مجھے نہیں نظر آتا کہ آئندہ الیکشن میں کسی بھی پارٹی کو واضح اکثریت حاصل ہوگی۔ یہ پھر سے ایک کولیشن گورنمنٹ بنے گی، اور وہ پھر کولیشن گورنمنٹ کیا کر پاتی ہے وہ وقت بتائے گا۔ جی، جیسے کہ آپ نے سنا کہ یہاں پہ اہم تجویز دی ہے اور کہا ہے کہ معاشی پالیسی ایک لمبے عرصے کی دینی ہوگی، اس میں ایک شارٹ ٹرم بھی ہو، 10 سال کی بھی ہو، تاکہ ملک کی معیشت جو مشکلات میں گھری ہوئی ہے اس کا حل نکالا جا سکے۔ جی، پاکستان مرکزی مسلم لیگ نے ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر سیاسی جماعتوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر دیا۔ تنظیم کے کراچی کے صدر ندیم آوان کہتے ہیں کہ ہماری جماعت نے دوسروں کے گریبان میں ہاتھ ڈالے بغیر کام کیا۔ نمرہ ریاست کی رپورٹ۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا نارتھ ناظم آباد میں جلسہ عام، جلسے میں مقامی رہنماؤں کے ساتھ ساتھ این اے 250، پی ایس 129، 130 اور روایت ہلال کمیٹی کے ممبر مفتی یوسف کشمیری نے بھی شرکت کی۔ این اے 250 اور کراچی صدر ندیم آوان نے اپنے خطاب میں کہا کہ الیکشن کمیشن سے ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ یہ ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزیاں ہیں، ہم الیکشن کمیشن کو بھی مخاطب کریں گے کہ جن علاقوں کے اندر یہ کام شروع ہوا ہے اس کو روکا جائے، اور ہم یہ بات ببانگ دہل کہتے ہیں کہ علاقوں کے اندر جہاں قانون شکنی ہوگی، جہاں ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی ہوگی،
हम कानूनी रास्ते के जरिए उनका रास्ता रोकेंगे इंशाल्लाह। जलसे से दीगर रहनुमाओं ने भी खिताब करते हुए कहा कि बड़े बड़े दावे करने वाले कामयाबी के बाद मंजर आम से गायब हो जाते हैं। मरकजी मुस्लिम लीग पर किसी किस्म की करप्शन या बोरी बंद लाशों का इल्जाम नहीं है। एक ऐसी जमात इस वतन अजीज में मैदान में आई है जिसने इस तफरकाबाजी को, ग्रोहबंदी को और सारे इज़्म का खात्मा करके मुसलमानों को एक होने का दर्स दिया है। हमारे दामन पर कोई करप्शन का दाग नहीं है, हमारे दामन पर कोई बोरी बंद लाशों का दाग नहीं है, हमारे दामन पर अपनों के नाहक खून का दाग नहीं है, हमारे दामन में नफरत की कोई आग नहीं है। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के नॉर्थ नाज़माबाद में मुनक्कदा जलसे में ख़वातीन कारकुनान ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। कैमरामैन वाहिद खान के साथ नमरा रियासत, सिटी 21। MA जिना रोड के करीब जुबली सेंटर में आग लग गई। इमारत की बेसमेंट में कपड़े की दुकानों में लगी आग पर काबू पा लिया गया। रेस्क्यू के मुताबिक फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने आग बुझाने के ऑपरेशन में हिस्सा लिया। मजीद जानेंगे शाजिब हुसैन से। जी, 9:15 बजे आग लगने की इत्तला मौसूल हुई और इसके बाद यहाँ पर फायर ब्रिगेड का अमला और रेस्क्यू टीम 1112 का अमला यहाँ पर मौके पर पहुंचा और उसने जो है आधे घंटे की जद्दोजहद के बाद आग पर जो है काबू पा लिया है। बताया जाता है कि आग बेसमेंट में कपड़ों की दुकानों में लगी थी। इस वक्त हमारे साथ रेस्क्यू टीम 1112 के फायर ऑफिसर इंचार्ज इफ्तिखार मौजूद, हमसे बात करते हैं क्या वाक़या पेश आया था, क्या बताया जा रहा है कि आग क्यों लगी थी। जी, हमें कंट्रोल एंड कमांड रूम में 9:17 पे कॉल मौसूल होती है। विदिन 10 to 15 मिनट्स हमने रिस्पांस किया। यहाँ पर जब आए तो बेसमेंट में थी और स्मोक ही थी। बहुत ज़्यादा स्मोक होने की वजह से इनिशियली तो हमें मालूम नहीं हो रहा था। हमारे ट्रेंड फायर फाइटर जब गए वहाँ पर उन्होंने देखा 2 से 3 दुकानों में थी और फायर फाइटिंग करने के बाद जो उन्होंने क्लियरेंस दे दी है बिल्डिंग की इस वक्त और कूलिंग का भी अमल हो चुका है। इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ये पता चला कि आग लगने की क्या वजूहात थी, क्या यहाँ पर इमारत में फायर एग्जैक्ट मौजूद थे नहीं थे। इस वक्त जो है कबल वक्त होगा बताना आपको कि क्या वजूहात के बिना पे लगी है। बाकी यहाँ पर जो एनी शाहिदीन है वो कहते हैं कि शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। फायर एग्जिट मौजूद है पर बंद था और ये तो चलें कोई मार्केट ओपन नहीं हुई थी जिसकी वजह से जो है कोई लोग नहीं थे। फायर एग्जिट बंद वैसे था, अगर लोग होते तो ज़्यादा नुकसान हो सकता था। जी बिल्कुल, ये रिहायशी इमारत भी है जिसमें यहाँ पर लोग रिहाइश तैयार कर रखे हैं, जबकि साथ ही साथ बताया जाता है कि आग लगने की इब्तिदाई वजूहात जो है मंजर आम पर नहीं आती हैं। इस वक्त जो है कूलिंग का अमल भी मुकम्मल कर चुके हैं। जी, मोररू मीर बह टाउन की यूनियन कमेटी 6 में शामिल बल्दिया टाउन 3 नंबर का दिलावर मोहल्ला कई माह से मुकम्मल तौर पर सीवरेज के पानी में डूबा हुआ है। जगह जगह गंदगी गलाजत के बायस इलाके में अमराज फूट रहे हैं। रिजवान अहमद से तफसीलात जानेंगे। जी बिल्कुल, बल्दिया टाउन नंबर 3 दिलावर मोहल्ले से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ और दिलावर मोहल्ला जो कि मोरलो मीर बहर टाउन की हदूद में आता है। NA यहाँ पे कौमी असम्बली का हल्का लगता है NA 242 और सूबाई असम्बली का हल्का PS 113। दिलावर मोहल्ला जो कि इंतहाई गुंजान आबाद मोहल्ला है, यहाँ के 50 से ज़ायद जो घराने हैं उसके मकीन सेवरेज के नाकारा निज़ाम की वजह से घरों में महबूस होकर रह गए हैं। इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बड़े साहब बताइएगा क्या सूरत हाल है, ये कब से है और क्या क्या परेशानी हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारी तकरीबन हर महीने का ये रूटीन है हमारी, समझे ना। इसके अंदर बच्चों का चलने की जगह नहीं है। इसके अंदर ये गंदा पानी है जो पानी की लाइनों में शामिल हो रहा है, जो हमारे घरों में 3 महीने में 2.5 महीने में पानी आता है उसके अंदर ये शामिल होता है। मच्छर अलग है, घरों में बैठने की हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, ना हम घर में बैठ सकते हैं। हर 2 दिन के बाद शाम में काम पे से आओ तो डायरेक्ट डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन का अमला या टाउन का अमला या UC का कोई अमला आया इसको मसले को हल करने के लिए? अभी तक कोई भी नहीं आया। सिर्फ इलाके वाले धक्के खाते हैं, आज आ रहे कल आ रहे, आज आ रहे कल आ रहे। ये आपके सामने हमारे इलाके का हाल है। सुबह स्कूल के बच्चे निकलते हैं, दोपहर में मदरसे के बच्चे निकलते हैं, उनका ये हाल होता है, पानी में गिरते हैं। कोई देखने वाला नहीं, कोई इसका पुरसान हाल नहीं। दिलावर मेला इस तरह हो गया ऐसे यतीम मिस्किन इलाका है। आप बताइए मुझे क्या क्या परेशानी इससे जो है मजीद हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। परेशानी ये है कि ये गंदे पानी की वजह से बच्चे बीमार हो रहे, घरों में हर बच्चा बीमार है और ये कोई आता है देख के चले जाता है। अभी तक कोई इसका वो नहीं हुआ है, इशू नहीं हुआ है।
बिल्कुल कहा यह जा रहा है कि इंतजामिया यहाँ पर इन लोगों का कहना है कि आए तो ज़रूर, लेकिन जो अमली इकदाम है वो नहीं उठाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ के रहने वाले बासियों की जो ज़िंदगी है वो भी दाव पर लगी हुई है। बीमारियों के यहाँ पे जो है बताया जाता है केसेस बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं और ग़िलाज़त के नतीजे में यहाँ के जो रहने वाले हैं वो शदीद मुश्किलात से दुचार हैं। जी, इलेक्शन सर पर हैं मगर अवामी हालात जूं के त्यों हैं। एन ए 234 के मकीन ख्वार हैं। कोरंगी मेहरान टाउन में शाहराहों पर गटर दरिया बन गए हैं। उबलते गटरों ने इलाका मकीनों का जीना मुहाल कर रखा है। आपको कहते चलें कि इंतखाबात सर पर हैं मगर अवामी हालात जूं के त्यों हैं। एन ए 234 के मकीन ख्वार कोरंगी मेहरान टाउन में शाहराहों पर गटर दरिया बन गए हैं। उबलते गटरों ने इलाका मकीनों का जीना मुहाल कर दिया है। कमोबेश कराची के तमाम हलकों का यही हाल है। उबलते गटर हैं, सीवरेज का पानी है, साथ साथ लोड शेडिंग के मसाइल हैं और गैस के मसाइल भी बहुत ज़्यादा हर हलके में देखने में आ रहे हैं। इलेक्शन सर पर हैं मगर आवाम के हालात जू के तू हैं, कुछ बेहतरी नहीं आई। एन ए 234 के मकीन ख्वार हो रहे हैं। कोरंगी मेहरान टाउन में शाहराहों पर गटर दरिया बन गए हैं। उबलते गटरों ने इलाका मकीनों का जीना मुहाल कर दिया है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे। आजिज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। जी आजिज़, बताएगा कि इंतखाबात सर पर हैं, कोई अवामी नुमाइंदे जो हैं वो हलकों का रुख नहीं करे ताकि आवाम की मुश्किलात को सुन सकें, उनका अजाला कर सकें। जी देखिए, बात तो इंतखाबात की हो रही है लेकिन इलाके गटरों के पानी में डूबे हुए हैं। इस वक्त मैं मेहरान टाउन में मौजूद हूँ। ये एन ए 234 है। 3 लाख से ज़ायद इस इलाके के वोटर्स हैं इस हलके के। यहाँ तमाम जमातों के उम्मीदवार तो मैदान में हैं लेकिन कई दिनों से ये जो सड़क है मेहरान टाउन की, ये बिल्कुल डूबी हुई सड़क है और आपको ये यकीन भी आ रहा होगा कि लोगों ने कई दिनों से इसकी शिकायत भी की हैं, मुतल्लिका हुकाम को बताया भी है, लेकिन उम्मीदवार को दिलचस्पी सिर्फ वोट मांगने से है, मसाइल से नहीं है। यहाँ के लोग मौजूद हैं। ये कब से है ये जो गटर है, यहाँ पूरा एक दरिया बना हुआ है, ये कब से है? जी तकरीबन 1 हफ्ते से है ये। शिकायत वगैरह की लोगों ने? जी लोगों ने शिकायत की लेकिन अभी तक कोई इकदाम पेश नहीं किए इन लोगों ने। अच्छा, ये लोग उम्मीदवार आ रहे हैं सिर्फ वोट मांगने के लिए, इन मसाइल को नहीं देखते? नहीं, बिल्कुल मसाइल को बिल्कुल नहीं देख रहे और वोट मांगने के लिए हर कोई जो है ना आगे। आप क्या कहेंगे, ये कब से है और कैसे हल होगा? भाई मैं ये कहना चाहूँगा कि 8 या 9 तारीख को इलेक्शन है और अभी देख सकते हैं कि भाई ये झंडियाँ वगैरह पीपल्स पार्टी की काफ़ी जो है ना यहाँ मुलाजिम यानी आ रहे हैं वोटिंग के लिए। अभी वोटिंग के लिए चक्कर लगाएंगे, जब इलेक्शन हो जाएगी फिर यहाँ कोई नज़र नहीं आएगा। अभी देख सकते हैं कि तकरीबन आधा घंटा जो है ना यहाँ बरसात हुई, आधे घंटे के अंदर अंदर ये पानी हुआ है। फर्ज ये अगर 3 से 4 घंटे होती तो ये आलम की रोड जो है ना सारा फुल हो जाता है। तो काफ़ी अवाम नदी की साइड से इस इलाके के और कौन से मसाइल टाउन के? भाई मसाल ये हैं कि गटर लाइन नहीं है। मेन मसला यहाँ नदी हमारी नज़दीक है और यहाँ गटर लाइन नहीं है। अगर गटर लाइन होती तो ये पानी जो है ना यहाँ जमा नहीं होता। सीवरेज की लाइन ही नहीं है? लाइन है लेकिन सारी एक बार लाइन लग गई है, उसके बाद कोई जो है ना यहाँ जो है ना देखभाल करने के लिए नहीं आया, उसमें मिट्टी भर गई, वो सारी जो है ना लाइनें वो बंद हो गई। सुना आपने, ये मेहरान टाउन के बाशिंदे थे जो बता रहे हैं कि एक बार ज़िंदगी में एक बार कोई सीवरेज की लाइन बिछाई गई है लेकिन उसके बाद फिर उसको कोई देखने वाला नहीं है। 5 मिनट की बारिश पड़ती है, इलाके डूब जाते हैं। तो ये सूरत हाल है मजमूई तौर पे। यहाँ ये कोरंगी है, कोरंगी का हल्का एन ए 234 है। यहाँ उम्मीदवारों की झंडियाँ बहरहाल लगी हुई हैं, वोट मांगने ज़रूर आ रहे हैं लेकिन ये जो नाले। ये बताइएगा कि इंतखाबात के सिलसिले में कमोबेश दर्जनों इलाके आप कवर कर चुके हैं। हर जगह हम ये देख रहे हैं कि लोग एक उकताए हुए हैं, मायूस हैं। उन्हें इलेक्शन के बाद भी सूरत हाल बेहतर हुई नज़र नहीं आ रही। ऐसा हमें 2018, 2013 और 2008 के इलेक्शन में नज़र नहीं आता था। जी हाँ, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैं गुज़िश्ता कोई 15 दिन से मुसलसल रोज़ाना के बुनियाद पे इलेक्शन के हलके कवर करता हूँ और आज कोरंगी के मेहरान टाउन में हूँ। हर जगह पे कुछ ऐसे कॉमन मसले हैं जो हर हलके में मौजूद हैं। मेरा ख्याल है कि पूरे शहर में मौजूद हैं। यानी सीवरेज का मसला आपको हर जगह मिलेगा, पीने के पानी की किल्लत आपको हर जगह मिलेगी, सुई गैस की किल्लत आपको हर जगह पे मिलेगी,
घंटों तक बिजली की लोड शेडिंग आपको हर जगह पे मिलेगी। ये हम किसी देही इलाके की बात नहीं कर रहे, किसी छोटे शहरों की बात नहीं कर रहे, ये दुनिया के मेगा सिटी कराची की हम बात कर रहे हैं। कराची सिर्फ शायरा फैसल नहीं है या बड़ी शायराएँ नहीं हैं, कराची बहुत बड़ा शहर है और 22 हल्के हैं कौमी असम्बली के, 47 हल्के हैं सूबाई असम्बली के। तमाम हलकों की यही सूरत हाल है, तमाम हलकों में एक जैसे ही मसाइल नज़र आ रहे हैं। तमाम हलकों में एक जैसे ही मसाइल नज़र आ रहे हैं। अच्छा, रेड शर्ट में आपके पास एक भाई खड़े हैं, उनसे ज़रा बात कीजिए। कुछ उम्मीद रखते हैं वो 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद, या वो भी मायूसी के अंधेरे में डूबे हुए हैं? क्या कहेंगे, लोग वोट मांगने आ रहे हैं, इलेक्शन हो रहे हैं, तो फिर कैसे मसला हल होगा? देखिए, सबसे बड़ा मसला ये कि जो भी आता है पहले बोलता है कि वोट वगैरह मतलब हमें दें, पेम्पलेट बांट रहे हैं कि वोट हमें दें, लेकिन देखिए वोट ऐसे कैसे देंगे जब रोड का ये हाल है, इससे मच्छर पैदा हो रहे हैं, बीमारियां पैदा हो रही हैं। तो लोग हमने देखे, हालांकि यहाँ पे मेडिकल भी खोला हुआ है, आपके पीछे देखिए मेडिकल भी नहीं, कोई कस्टमर ही नहीं आ रहा। किस वजह से नहीं आ रहा? पानी भरा हुआ है रोडों पे, लोगों ने मतलब लोग भी परेशान हुए हैं, आने जाने वाले नदियों से चढ़ के जा रहे हैं, ऊपर डकैतियां हो रही हैं। सर जी, वोट हमने जब देना है, पहले रोड फिर वोट, जो रोड देगा वो हमसे वोट लेगा। अच्छा, ये बात उम्मीदवारों से करते हैं आप? बिल्कुल, उम्मीदवार आए कई चक्कर है हमारे उनके यहाँ, जल्द से भी उनको भी हमने बोला, हमने कहा पहले रोड फिर वोट। सुना आपने, ये बता रहे हैं एक वोटर सुना के पहले रोड और फिर वोट। आजिज, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। मेहरान टाउन से ही हमारे साथ एहसन अब्बासी भी मौजूद हैं। एहसन, बताइएगा यहाँ पर क्या मसाइल देख रहे हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त एनए का जो हल्का है 234 और पीएस 96 की सूरत हाल इंतहाई बुरी सूरत हाल है। गली मोहल्ले सब ज़ेरे आब हैं। कई माह से जो है वो सीवरेज का पानी गली मोहल्लों में था और उसके बाद बारिश हो गई तो कोई इलाके का पुरसान हाल नहीं है। गुजरगाहें तमाम जो है वो दुशवार हो चुकी हैं। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर, मुझे बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं इलाके की, वोट किसको डालेंगे, क्या कह रहे हैं नुमाइंदे जीतने वाले जो माजी में जीते, जो अब आ रहे हैं वोट मांगने के लिए? यहाँ पर ये सूरत हाल जो है ना, पिछले 10 साल से मेहरान टाउन की ऐसी सूरत हाल है। पिछले 5 साल जो 4 साल गुजरे हैं, इनके अंदर पीटीआई के एमएनए भी थे, यहाँ से एमपीए भी थे, इस वक्त चेयरमैन भी उनके ही हैं, लेकिन उन्होंने मुड़कर नहीं पूछा। यहाँ पर आए, एक छोटा सा टुकड़ा डाला। सड़कों की हालत ऐसी है कि डकैतों की जन्नत कहलाता है मेहरान टाउन, कि आप जो है ना वो दिन दिहाड़े आप लूटते हैं यहाँ पर। अच्छा, लोगों को सरेआम लूटा जाता है इन्हीं खड्डों की वजह से कि यहाँ से सवारी बंदा जो घुस जाता है वो भाग नहीं सकता फिर यहाँ से। अच्छा, कोई पूछने वाला नहीं है, न पानी है, न बिजली है, न गैस है। यहाँ पर प्लाट जो है वो 1-1 करोड़ रुपए के और 50 लाख का, 80 गज से 50 लाख से कम प्लाट आपको नहीं मिलेगा, लेकिन जो बुनियादी इंसानी ज़रूरियात हैं वो यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। एक और भी भाई हमारे साथ मौजूद हैं। भाई, मुझे बताइएगा, वाटर कॉरपोरेशन को सीवरेज के अमले को कोई कंप्लेन की? जी बिल्कुल, मैंने अभी KWSB की तरफ कंप्लेन की थी। ये मैंने परसों की थी। उन्होंने आगे एक रेफरेंस नंबर लिया, कोई आबिद शेख नाम से थे, वो बोले कोई इंजीनियर है, वो यहाँ पर इनको यानी कि लुक आउट करेंगे। तो उनको कॉल किया, उन्होंने आगे एक और इंजीनियर का रेफरेंस दिया कि आप उनको कॉल किए, लेकिन अमल दरामद बिल्कुल भी नहीं हुआ। मैं खुद वुडवर्क इंटीरियर पे काम करता हूँ, ये मेरा वेयर हाउस है यहाँ पर ना, टैक्स पे और प्रॉपर यानी कि हम टैक्स देते हैं हर चीज़ का, और यहाँ हमारे 2 वेयर हाउस है, उसके बावजूद भी कोई अमल दरामद नहीं हुआ। रेफरेंस हर तरह से हम दे चुके हैं इनको। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, सूरत हाल आपने देखी, शहरियों का मौक़िफ़ भी जाना कि शहरी जो है वो इंतहाई परेशानी के आलम में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कचरा कुंडी यहाँ पर मौजूद है, कचरा उठाने के लिए कोई नहीं आता। पानी जो है वो सालों से खड़ा हुआ है, ना ही वाटर कॉरपोरेशन आ रहा है, ना ही बल्दियाती नुमाइंदगान जो कि वोट मांग के जीते हैं और उसके बावजूद वादे किए थे कि वो तमाम मसाइल को जो है वो हल करेंगे, लेकिन कोई भी मसाइल हल करता हुआ नज़र नहीं आता। जी, कोई भी मसाइल हल करता हुआ नजर नहीं आता। बहुत शुक्रिया एहसन और आजिज, आप हमें अपडेट कर रहे थे। PS 103 लांस एरिया में मसाइल के अंबार हैं। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग, गैस की दम फराहमी और पानी की किल्लत ने मकीनों की जिंदगी आजीरन कर दी। मजीद जानेंगे फारान खान से। जी बिल्कुल, इंतखाबात की गहमा गहमी जो है वो उरूज पे, अब से कुछ दिन बाद जो है वो इंतखाबात भी जो है वो सदने जा रहे हैं, लेकिन लोगों के मसाइल जो है वो ताहाल हल तलब हैं। इस वक्त जो है वो मैं सूबाई असम्बली के PS 103 के इलाके लाइन्स एरिया के अंदर मौजूद हूँ। इस इलाके के अगर मैं मसाइल की बात करूँ तो एक लंबी फहरिस्त है। इस वक्त जो है वो इलाका मकीन भी हमारे हमरा मौजूद है, इनसे भी तफसीलात हैं। सर, मुझे बताइएगा क्या इलाके में जो है वो बुनियादी मसाइल? बुनियादी मसाइल जो है ना, यहाँ बहुत सारे हैं।
لیکن جو مین مسائل ہیں نا وہ ہے بجلی، گیس، پانی. یہ تینوں چیزیں ایسی نایاب ہو گئی ہیں کہ مطلب ملتی ہی نہیں ہیں لائنز ایریا والوں کو. اور سب سے زیادہ جو پریشانی ہے وہ گیس کی ہے. 6-8 مہینے سے یہ تو ایسی ہو گئی ہے کہ جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہوتے ہیں نا، بس گیس ایسے غائب ہے. علاقہ مکین شکایت کر کے تھک گئے ہیں، بول کر تھک گئے ہیں. گاڑیاں بھی آ گئی ہیں، کوئی کہتا ہے کہ لائنوں میں پانی ہے، کوئی کہتا ہے پیچھے سے گیس بند ہے، لیکن علاقہ مکین بہت تنگ ہے. اچھا سر، مجھے بتائیے گا، بنیادی مسائل تو وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن جو ہے وہ الیکشن کی بھی جو ہے گہمے گہمی عروج پہ. آپ کیا سمجھتے ہیں لائنز ایریا کے مسائل جو ہے وہ کون سی پارٹی کا امیدوار جو ہے وہ حل کرے گا؟ دیکھیں لائنز ایریا جو شروع سے جو لائنز ایریا جو گڑ رہا ہے نا وہ اردو سپیکنگ MQM کا رہا ہے. اور یہاں کے مسائل جو حل ہے نا وہ ہم لوگ زیادہ تر جب جاتے ہیں نا تو ہمیں صرف متحدہ کے ہی جو نمائندے ہیں نا وہی مل پاتے ہیں ہمیں. اچھا مجھے بتائیے گا، تو پچھلے الیکشن میں جو منتخب ہو کے آئے تھے انہوں نے علاقے میں کوئی کام نہیں کیا گیا؟ علاقے میں کوئی خاص کام نہیں ہے جس کو آپ دیکھ کر کہہ سکو کہ یہ اس شخص نے کام کروایا ہے. ٹھیک ہے نا، ایسا کوئی کام نہیں ہے. بجلی جوں کی توں ہے وہ نہیں آتی، گیس نہیں ہے، پانی نہیں ہے، گٹر دیکھ لیں آپ، یہ کیچڑ نظر آ رہا ہے آپ کو، سارا روڈ یہ کبھی سوکھا ہمیں دکھتا نہیں ہے. تو یہ مسئلے کوئی بھی حل نہیں کرتا ہے یہاں کے، کوئی بھی جیتے. اگر MQM ہوتی ہے تو ان کے نمائندوں کو ہم آسانی سے پکڑ لیتے ہیں، بلا کر لے آتے ہیں اور یہ آ بھی جاتے ہیں. تو یہ مسئلے مسائل ہمارے دیکھ لیتے ہیں. جی بالکل، اس وقت جو ہے وہ علاقہ مکین میں ہمارے ہمراہ موجود تھے، ان سے بھی آپ نے تفصیلات سنی. بنیادی مسائل کی بات کی جائے تو گیس، بجلی، پانی جو ہے وہ اس علاقے میں 6 مہینے سے نایاب ہے. لیکن انتخابات میں جو ہے وہ امیدیں جو ہے وہ MQM پاکستان سے وابستہ ہیں کہ آئندہ آنے والے انتخابات میں جو ہے وہ MQM پاکستان کو مینڈیٹ دے کے اس حلقے سے منتخب کریں گے تاکہ وہ اس علاقے کے مسائل کو حل کر سکیں. جی محکمہ بلدیات سندھ میں افسران کی بھرتیاں. سندھ پبلک سروس کمیشن کے ذریعے 16ویں اور 17ویں گریڈ کے 536 افسران کی بھرتیاں کی گئی ہیں. خواتین اقلیتوں اور خصوصی نشستوں پر 46 اسامیوں پر بھرتیاں نہ ہو سکیں. مزید جانیں گے آزاد نوری ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی آزاد. جی بالکل، سندھ سرکار نے محکمہ بلدیات سندھ میں 536 افسران کی نئی بھرتیاں کر دی ہیں. یہ بھرتیاں جو جن افسران میں 419 میونسپل افسران شامل ہیں اور 117 اسسٹنٹ اکاؤنٹس افسران شامل ہیں. 17 اور گریڈ کے میونسپل افسران اور 16 گریڈ کے اسسٹنٹ اکاؤنٹس افسران کی بھرتیاں کر دی گئی ہیں. یہ بھرتیاں سندھ پبلک سروس کمیشن کے ذریعے کی گئی، جس کے محکمہ بلدیات سندھ نے باضابطہ طور پر نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دی ہیں، جس میں اقلیتوں، خواتین اور خصوصی افراد کی خالی 46 اسامیوں پر نئی بھرتیاں نہ ہو سکی ہے، کیونکہ ملازمت پر جو خواہش مند امیدوار تھے انہوں نے اپلائی نہیں کیا، جس کے باعث یہ اسامیاں تاحال خالی ہیں. جی اسامیاں تاحال خالی ہیں. آزاد نوری آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا. پاکستان سٹیل ملز کو مزید مالیاتی تباہی سے بچایا جائے. پاکستان سٹیل سٹیک ہولڈرز کا نگراں وزیر اعظم سے مطالبہ. پاکستان سٹیل سٹیک ہولڈرز نے وزیر اعظم انوار الحق کو خط لکھ دیا. پاکستان سٹیل کو مزید مالیاتی تباہی سے بچایا جائے. اس حوالے سے مزید جانیں گے. ارشف خان ہمارے ساتھ موجود ہے. جی ارشف، بتائیے گا. یہ اب دیکھا جائے پاکستان اسٹیل اسٹیک ہولڈر گروپ نے نگراں وزیر اعظم کو خط لکھ دیا، جس میں کہا گیا کہ پاکستان اسٹیل اسٹیک گروپ نے جو ہے 2005 سے 2024 تک پاکستان اسٹیل کے نقصانات اور واجبات جو ہیں 700 ارب روپے پر پہنچنے کے باعث بننے والے عوامل کی تحقیقات احتساب کا مطالبہ کر دیا. ساتھ ہی کہا ہے کہ پاکستان اسٹیل کے بورڈ آف ڈائریکٹر کی تشکیل نو کی جائے اور پاکستان اسٹیل میں جو پروفیشنل مینجمنٹ کی تقرر کی جائے، اور ساتھ ہی جو 700 ارب روپے کے جو واجبات اور نقصانات تجاوز کر گئے اس کے اوپر تمام تحقیقات عمل میں کی جائے، اور 2008 سے 2023 کے دوران ہونے والے نقصان واجبات کی بھی تحقیقات کی جائے. گیس کے واجبات کی وجہ سے گیس سپلائی جولائی 2015 سے بند ہے، اور اسٹیل مل کی جو پیداوار ہے 8.5 سال سے بند ہے، اور بند ہونے کی وجہ پاکستان اسٹیل کو یومیہ 10 کروڑ روپے کا نقصان ہو رہا ہے، جو کہ ماہانہ 3 ارب روپے کا نقصان ہو رہا ہے. اور پاکستان اسٹیل مل بند ہونے کی وجہ سے سالانہ جو اسٹیل مصنوعات $4 ارب جو ہے وہ قیمتی زر مبادلہ خرچ ہو رہا ہے. اور اس کی بحالی کے لیے جو اقدامات اور اسٹیل مل کی زمین کے لیے جو بات کی گئی ہے کہ جو اس کو منتقل کیا جائے تو اس کے اوپر اثر نو جائزہ لیا جائے، اور پاکستان اسٹیل کے جو قبضہ مافیا جو اس کی اسٹیل مل کی زمین پر جو زرعی مقاصد کے لیے رہائشی زمین پر قبضہ کر لیا ہے اس کو بھی واگزار کرائی جائے. جی ارشف خان، اپڈیٹ کے لیے آپ کا شکریہ. سبزی منڈی میں ڈکیتی کی واقعات پر تاجروں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے. بات کریں گے کاوش میمن سے. جی بالکل، دیکھیں خراب صورتحال کے پیش نظر سبزی منڈی کے تاجر بھی خوفزدہ ہیں، اور اسی حوالے سے منڈی میں 120 سے زیادہ CCTV کیمرے لگا دیے گئے. میرے ساتھ تاجر باچان اللہ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. ایک ڈکیتی ہوا تھا 37 لاکھ کا، ہمارا ایک رشتہ دار تھا اس کے اوپر. پھر اس کے بعد دوسرا ڈکیتی ہو گیا
23 लाख का, वो भी हमारा आदमी था। फिर उसके बाद और डकैती हो गया 24 लाख का। तो इस तरह वो ऑफिसर आते थे, हम ही तसल्ली देते थे। लेकिन उसके बाद हम लोगों ने मुजाहिरा किया, मंडी वालों ने। मुजाहिरे के बाद जो ऑफिसरान आया पुलिस का, उसने वादा किया कि हम हालात को कंट्रोल करेंगे। सब्ज़ी मंडी के अंदर एक गार्ड भी नहीं है। हम लोगों ने यहाँ पूरी मंडी में प्राइवेट अपना गार्ड रखा था, लेकिन मंडी वालों ने ताउन नहीं किया। तो अभी इस जहाँ हम खड़े हैं वो उस चौक से लेके गेट तक, इधर हमारे गार्ड है जो उसको हम तनख्वाह देते हैं प्राइवेट, वो यहाँ जो है ना पूरा गश्त करता है। और मंडी में नहीं बल्कि लोग मायूस है, बस वो पिस्टल रख के 30 लाख 20 लाख रुपया, पीछे कुछ बैंक है उनकी भी वो अपना सिक्योरिटी मजबूत नहीं है। तो इस वजह से अभी कैमरे भी लग रहे, अल्लाह करे इन कैमरों से हालात सही हो जाए। और ताजर जो है ना खौफजदा है और परेशान है, बल्कि बाज़ लोग तो इस पे मजबूर है कि हम कारोबार छोड़े, क्योंकि डाकू जो है ना यहाँ पहले बिस्मिल्लाह मार्केट में कई लोगों को मारा है और डकैती तो बेशुमार होता है। लेकिन जब से मुजाहिरा हुआ उससे बाद अभी तक कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या नहीं है। बिल्कुल देखिए, स्ट्रीट क्राइम का जिन बेकाबू है, सब्जी मंडी के ताजिर भी परेशान है। कहते हैं कि प्राइवेट गार्ड की मदद से यहाँ पर सिक्योरिटी लगाई गई है। पुलिस का कहना है कि नफरी की कमी है। अलबत्ता सीसीटीवी कैमरे लगा दिए हैं। पुरुम्मीद हैं कि इन कैमरों की बदौलत यहाँ पर स्ट्रीट क्राइम का जिन जो है वो काबू में आएगा। आम इंतखाबात का मैदान सजने का वक्त करीब आ गया है। सियासी जमातों के उम्मीदवारों ने इंतखाबी मुहिम तेज कर दी है। महाज कौमी मूवमेंट के NA-248 से उम्मीदवार नवीद हसन कहते हैं 8 फरवरी महाज नजरिया रखने वालों का दिन होगा। इस हवाले से मजीद बताएंगे अयाज राना। जी बिल्कुल, जैसा कि आप देख रहे हैं कि कन्वेंसिंग जो है वो ज़ोरों शोर से जारी है। तमाम उम्मीदवार अपने इलाकों में लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं और अपने जो वोट है, जो उनको पार्टी टिकट दिया गया है, उस हवाले से अपने मंशूर से भी आगाह कर रहे हैं। और साथ साथ 8 फरवरी में ज़्यादा से ज़्यादा वोट कास्ट करने के लिए लोगों को जो है वो आगाही फराहम कर रहे हैं। इस वक्त मैं NA-248 में मौजूद हूँ। मेरे साथ महाज कौमी मूवमेंट के जो उम्मीदवार हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं, नवीद हसन साहब। उनसे जानते हैं, नवीद भाई कैसा मोमेंटम दिख रहा है लोगों का, में कितना जोशो खरोश है इस 8 फरवरी को लेकर? जी अल्हम्दुलिल्लाह लोगों में बहुत जोश व खरोश है और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो मुहाजिर लफ्ज़ की बका होगी और मुहाजिर नज़रिए से लोग जुड़ेंगे। और आफाक भाई की जो 30-35 साल की जो अनथक मेहनत है, जो आफाक भाई ने जिस पौधे को पानी दिया, आज वो दरख्त की शक्ल इख्तियार कर गया है। और साए में आना, आवाम जो है वो कहते हैं अब हमें साया चाहिए मुहाजिर लफ्ज़ का। और रही ये अपने, मैं जिस इलाके से खड़ा हूँ यहाँ पर NA-248 से, इसमें जो है तकरीबन ब्लॉक 1 से लेके ब्लॉक 22 तक जो है ये ब्लॉक्स हैं, जिसमें लियाकताबाद का कुछ एरिया आता है, कुछ नॉर्थ कराची का एरिया आता है। पानी से बड़ा परेशान है लोग, सेवरेज की लाइनों से बड़ा परेशान है, कि इलेक्ट्रिक के हवाले से बड़ा परेशान है। आजमाए हुए लोगों को बार बार आजमाना ये अक्लमंदी नहीं है। खालिद मकबूल साहब जो हैं वो 10 साल से रियासत में रहे हैं, असेंबलियों में गए हैं, उन्होंने आवाम के लिए क्या क्या किया, उन्होंने आवाम के लिए, आवाम को सब समझ में आता है। आवाम का मैंडेट इन्होंने हमेशा बेचा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने चाहा तो 8 फरवरी को मोमबत्ती पर वोट देकर आवाम साबित करेंगी कि हम मुहाजिर हैं। में जो इनका कहना है कि इस वक्त जो हमारा नज़रिया है, ख़ासकर जो इनकी जमात की जानिब से जो 30-35 साल की जद्दोजहद है, उसके हवाले से वो उम्मीद है कि 8 फरवरी को इस दफ़ा जो है वो अब लोग मारूसी सियासत को छोड़ते हुए जिनको वोट देते आएँ, लेकिन इस दफ़ा जो है वो लोग बदलेंगे और नए लोगों को आजमाएंगे। जी NA-250 के इलाके नॉर्थ कराची सेक्टर 11E में बिजली और गैस की अदम फराहमी से शहरी परेशान हैं। मजीद बताएंगी हमना निसार। बिल्कुल जी, इस वक्त मैं सेक्टर 11E नॉर्थ कराची में मौजूद हूँ, जहाँ पर सूबाई असम्बली का हल्का 124 और कौमी असम्बली का हल्का NA-250 लगता है। लेकिन यहाँ के इलाका मकीन है, वो पत्थरों के ज़माने की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। एक पोश इलाका है, लेकिन यहाँ पे गैस और बिजली के एक संगीन मसाइल है, जिसकी वजह से यहाँ के इलाका मकीन काफ़ी परेशाान दिखाई देते हैं। हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी बताइएगा, गैस के किस तरह के मसाइल हैं आपको? गैस तो आ ही नहीं रहा बेटा। हम है ना सिलेंडर में है ना गैस डलवाते हैं जब खाना खाते हैं। सुबह जाती है तो दिन में 5 बजे आती है, फिर मगरिब के बाद जाती है तो रात के 2 बजे आती है। ये बदलाव बेटा क्या है ना, ये हुकूमत है, क्या कर सकते हैं? गरीब इंसान कहाँ से भरेगा मेरा बच्चा, ये बदलाव क्या है? क्या कहेंगे, गैस सिलेंडर जिस घरों में इस्तेमाल नहीं होता है और ज़ाहिर है गैस नहीं आती है, तो फिर किस तरह गुजारा होता है? ये रखा हुआ आपके सामने, ये देखें, ये सिलेंडर रखा हुआ है, ये सिलेंडर जला रहे हैं और लकड़ी के चूल्हे जला रहे हैं। मेरा खुद लकड़ी का भी काम है
तो मैं मुझसे कितने लोग लकड़ियाँ मांगने आते हैं वो आपको नहीं पता, बुरादा लकड़ियाँ जिससे खाना बना रहे लोग। ये यकीनी तौर पर यहाँ पे जिस तरह के गैस और बिजली के संगीन मसाइल हैं, जिसके बाद यहाँ के शहरी जितने भी हैं, उनके जितने भी उम्मीदवार हैं, उनके ऊपर से एतमाद उठ गया। कहते हैं वोट मांगने सब आ रहे हैं, मसाइल का हल किसी के पास भी नहीं है। यहाँ पे इनका यही कहना है कि इलेक्शंस तो हो ही नहीं रहे हैं, यहाँ पे जितने भी जमात हैं उन सब के परचम जो हैं इसी तरह लगाए गए हैं, लेकिन मसाइल के लिए कोई बात नहीं कर रहा है। जी, फाउंडेशन पब्लिक स्कूल के तहत नेशनल कोचिंग सेंटर में सालाना स्पोर्ट्स गाला जारी है। मज़ीद जानेंगे मोहम्मद हमाद से। नेशनल कोचिंग सेंटर में फाउंडेशन पब्लिक स्कूल का रंगारंग स्पोर्ट्स गाला इस वक्त जारी है और हमारे साथ मौजूद है नॉर्थ कैंपस ओ लेवल की जो है प्रिंसिपल हैं, उनसे बात कर लेते हैं। शाइस्ता मैम, मुझे बताइएगा, बड़ा ही ज़बरदस्त इवेंट मुनक्किद कराया है आपने और हम देखते हैं कि हर साल जो है फाउंडेशन पब्लिक स्कूल के मुख्तलिफ कैंपस के इवेंट जारी होते हैं। क्या समझती है कितना ज़रूरी है आजकल के इस माशरे में इस तरह के इवेंट होना? इस वक्त हम प्रीमियर लीग 2024 में हैं। तकरीबन 1300 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 2 कैंपसेस, एक गुलशन और डिफेंस के बच्चे इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और ये प्रीमियर लीग एक दिन का है, लेकिन इसके पीछे बहुत सारी सीजन्स हैं, सीरीज़ ऑफ गेम्स हैं। हमारी यहाँ पे टीम्स होती हैं, बास्केटबॉल, फुटसॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, क्रिकेट, जो पूरा साल खेलते हैं और खेलने के हुनर सिखाए जाते हैं। सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं बल्कि ये भी कि कंपटीशन कैसे किया जाता है, जीतना कैसे है और हारना कैसे है। और आज इस सब गेम्स की कल्मिनेशन है, जबकि रेसेस भी हो रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि तमाम हमारे 3 हाउसेस हैं, जिना, लियाकत और इकबाल, किस तरह से कम्पीट कर रहे हैं, लेकिन एक कोलैबोरेशन के साथ। देखिए कि हमारे साथ मौजूद हैं फाउंडेशन पब्लिक स्कूल नॉर्थ ओ लेवल कैंपस की प्रिंसिपल। इनका ये कहना है कि हर साल जो है वो इस तरह का फाउंडेशन पब्लिक स्कूल का ये इवेंट होता है। आज जो है वो 2 कैंपस के जो है ये स्पोर्ट्स इन्होंने इवेंट रखा है, जिसका नाम जो है वो फाउंडेशन पब्लिक स्कूल प्रीमियर लीग रखा गया है, जिसमें तलबा व तलबात की एक बड़ी तादाद मौजूद है और इनके दरमियान जो है मुख्तलिफ दौड़ के यहाँ पर मुकाबले जारी हैं। जी।